This is set theory, third exercise. Subsets. A set A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B. Using symbols, we can write A is a subset of B if A belongs to A. It implies that A belongs to B. देखिए, एक सेट A के यदि सारे एलिमेंट्स सेट B में भी हैं, तब सेट A B का सबसेट कहलाएगा। और इसे हम इस तरह लिखेंगे, A सबसेट ऑफ B इफ A। देखिए ये जो साइन है, ये हमने आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया था, ये बिलोंग्स टू का साइन है। यदि एलिमेंट A बिलोंग करता है सेट A से, तो इसका अर्थ यह लगाया जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट A बिलोंग्स टू B ऑल्सो। देन A इज ए सबसेट ऑफ B if A is an element of A implies that A is also an element of B. चलिए, यदि if A is not a subset of B, we write this way. This is the symbol of A is not subset of B. Okay? Next point. Every set A is a subset of itself. Implies that A is a subset of A. Since the empty set phi has no elements, phi is a subset of every set. देखिए, A कोई भी सेट A है वो अपना खुद का सबसेट ज़रूर होगा, और फाई जो सेट होता है, चूँकि हम इसे नल सेट के नाम से जानते हैं, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, तो फाई भी हर सेट का सबसेट होगा। इज दैट क्लियर? यानी प्रत्येक सेट के दो सबसेट तो होंगे ही, एक तो फाई, एक वो खुद, एक वो सेट स्वयं अपना सबसेट होगा। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं। Intervals as subsets of R. देखिए, हम किस तरह समझेंगे इसे? ओपन इंटरवल्स। लेट A B belongs to a set of real numbers R and A is smaller than B. Then the set of real numbers y such that y is greater than A, smaller than B, is called an open interval, right? And is denoted by the small brackets. All the points between A and B belong to open interval AB. Right? But AB themselves do not belong to this interval. इसका अर्थ ये है कि A और B के सारे एलिमेंट, B के बीच के सारे एलिमेंट्स, A और B के बीच के सारे एलिमेंट्स तो सेट का भाग होंगे, किंतु A और B जो एलिमेंट्स हैं वो सेट में नहीं होंगे। और हम इसे इस तरह पढ़ेंगे कि ये ओपन इंटरवल्स में हैं। Okay, but A, B themselves do not belong to this interval. Okay, next, the interval which contains the endpoint also is called closed interval, जिसमें जो एंड पॉइंट है वह भी इंक्लूडेड हो विद इन द सेट, तब हम उसे क्लोज्ड इंटरवल कहेंगे। और इसे हम बिग ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। thus AB set closed interval set of AB is equal to X such that
x is greater than equal to and less than equal to greater than equal to a and less than equal to b. We can have intervals closed at one end and open at the other also, right? जैसे अब हम किस तरह से उसे प्रकट करेंगे देखते हैं. See, dear students, we can have a set of this type also. One end it is closed and one end it is open. This side you are viewing here, this side it is open and this side it is closed. Here we can write in the set builder form x such that x is greater than equal to a and less than b. It is an open interval from a to b including a. Here a is including because it is x is greater than equal to also. Okay, so a is included but excluding b. बट b यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया जाता है, b एलिमेंट यहाँ पर नहीं होता है इसके अंदर, सेट के अंदर b तक है, b उसमें इंक्लूडेड नहीं होगा. इसी तरह से हम दूसरे एक व्यवस्था भी हो सकती है यहाँ पर a b in the intervals x such that x is greater than a but less than equal to b is an open interval from a to b including b but excluding a. Right? These notations, क्यों हमने इस तरह से notations क्यों बनाई हैं? These notations provide an alternate way of designating the subsets of set A of real numbers. इसमें हम real numbers के जो subsets होते हैं उन्हें designate कर सकते हैं. आइए देखते हैं कि हम ये किस तरह से करते हैं. For example, if A is equal to -3 to 5 in a open interval and b is -7 to 9 in one side closed one side open interval, then a is a subset of b. क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर b का अर्थ होगा -7 से शुरू करके 8 तक के सब एलिमेंट्स जो है 9 तक, यानी कि 9 इंक्लूडेड नहीं होगा, 8 तक के सारे एलिमेंट्स इंक्लूडिंग 8 वहाँ पर उसमें होंगे. और निश्चित रूप से हम ये देखते हैं कि जो ओपन इंटरवल है -3 to 5, ये जो एलिमेंट्स हैं इसमें कौन कौन से होंगे? -3, -2, -1 और इस तरह से चलते हुए इंक्लूडिंग -3 और इंक्लूडिंग 5 यहाँ पर ये एलिमेंट्स होंगे. तो इस तरह से इसे हम जो कहेंगे A इज ए सबसेट ऑफ B, ये हम यहाँ पे कह सकते हैं. द सेट this 0 to infinite in intervals defines the set of non-negative real number. Non-negative real number means it starts, x is such that x starts from 0, x is greater than equal to 0 and it is less than infinite, right? So this way it can be written. The set minus infinite to infinite in the intervals describes that the set of real numbers in relation to a line extending from minus infinite to infinite. That is the right way to express this. Here we can express in another way also. If this is a line, okay, and these are the 2 points right here. See, if there are the 2 points A and B, okay, then you can see here that these 2 points are within the line, means that these 2 points are included, right? Here you can see on this line A and B 2 point, this is the interval
closed at both sides. You are seeing, and these 2 points are included here in A and B. Here A and B are not included. Here A is included but B is not. Here A is not included, B is. This way we can write. So -5 to 7 in intervals can be written as x such that x belongs to R, जहाँ के x is greater than -5 and less than equal to 7. -3 to 5 in intervals can be written as x such that x is greater than equal to -3 and less than 5. Here we have expressed it through so many examples. Let's move ahead. Come on. Dear students, what is power set? A power set, the collection of all subsets of a set A, is called the power set of A. It is denoted by PA. In PA, every element of a set is there. Okay? Every subset of a set is there. See here, if A is a set, 1, 2, 3 are its elements. Power set of A will include, number 1, हमने आपको बताया था फाई हर किसी सेट का सबसेट होता है. उसके बाद इसके सबसेट कौन से होंगे? 1, 2, 3. ओके. उसके बाद 1 and 2 ये दोनों एलिमेंट्स एक सेट के अंदर, ये एक अलग सबसेट होगा. 2, 3, 3, 1 एंड हमने बताया था कि सेम सेट इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ. ए सेट खुद अपना भी सबसेट होगा. तो ये पूरा जितने भी सबसेट्स हैं उन्हें इंक्लूडेड करते हुए ये पावर सेट ऑफ ए है. दैट्स क्लियर. आइए एक्सरसाइज देखते हैं. पहला क्वेश्चन है मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट ए सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस. सी 2, 3, 4 ये सेट ए है. सेट बी यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5. तब हम देखते हैं यहाँ 2, 3, 4 ये तीनों एलिमेंट्स सेट बी में हैं. यस. तो सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी. तो यहाँ पर सबसेट का निशान ठीक है. एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन. सेकेंड सेट है हमारा एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन. कोई भी प्लेन के अंदर जो रेक्टेंगल्स हैं, रेक्टेंगल्स का जो सेट है उसमें कोई ट्रायंगल नहीं होगा, इसलिए सेट ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ए बी दो एलिमेंट्स हैं सेट ए के अंदर और वो कहता है, उसने लिखा है कि ये सबसेट नहीं है बी, सी और ए वाले एक सेट का. तो हम यहाँ पे देखते हैं ए सेट के दोनों एलिमेंट्स बी सेट में हमें मिलते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी. तो ये जो हमें दी हुई स्टेटमेंट है ये गलत साबित हो जाती है. इसी तरह से देखिए ए ई इज ए सबसेट ऑफ X such that X is a vowel in English alphabets. तो यहाँ हम देखते हैं ये A और E दोनों वॉवेल्स हैं और ये सेट इससे बड़ा सेट है लेकिन वॉवेल्स का ही है, तो निश्चित रूप से सेट A सेट B का सबसेट होगा. ये ट्रू है. थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं. लेट A इज इक्वल टू 1, 2. ये सेट A सेट का है, इसके एलिमेंट्स 1, 2 और ये 3, 4 भी यहाँ इन्होंने देखिए अजीब है कि ब्रैकेट्स के अंदर दिया, यानी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं सेट ए के 1, 2 सेट विद एलिमेंट्स 3 and 4 and 5 एक अलग एलिमेंट है. तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर
आर इनकरेक्ट एंड वाई। अब वो पूछता है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेट विद एलिमेंट 3 and 4 is a subset of A. No, that is an element of A. So we can say set with element 3 and 4 is an element of A, or set with element 3 and 4 is a it belongs to A. It belongs to set A. और यही हमारा सेकंड क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें आंसर है कि ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। नाइन्थ क्वेश्चन पे आइए। नाइन्थ क्वेश्चन हमें दिया है, थर्ड क्वेश्चन का नाइन्थ पार्ट जो है कि फाई बिलोंग्स टू ए। नो, इट इज इनकरेक्ट because phi is a subset of set A. It's not the element, it's the subset of A. Next. Question number 4. Write down all the subsets of the following sets. Set, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेट दिया हुआ है ए बी, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे? फाई ऑब्वियसली, ए बी, और एक जॉइंट सेट जो दोनों का पूरा सेट होगा, ये खुद भी अपना सबसेट होगा ए बी। अब वो पूछता है फाई के सबसेट लिखिए। एक सबसेट है, एक सेट है फाई, उसके सबसेट्स लिखिए। तो ऑब्वियसली एक ही यहाँ पे सबसेट होगा और वो होगा फाई। हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू फाई। यहां भी वही है, यदि ए इज इक्वल टू फाई है तो उसका जो पावर सेट होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा, दैट इज फाई। दैट्स इट। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। ही सेज इन द फर्स्ट क्वेश्चन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, एंड एक्स इज greater than 4 and less than equal to 6। तो 6 यहां पे इंक्लूडेड है, और हम देखते हैं 4 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो 4 ओपन इंटरवल है और यहां पर 6 जो है वो क्लोज्ड इंटरवल है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं -4 6, और यहां स्मॉल ब्रैकेट, इधर कैपिटल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। सो अब हम लिखेंगे इसे ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओपन इंटरवल, इट्स एन ओपन इंटरवल from -4 to 6, including 6 but excluding -4, right? Second question. See, dear students, x such that x belongs to real number, x is greater than -12 and less than -10. So we can write it as here open intervals -12 to -10, open interval between -12 and -10, but excluding -12 and -10. Next question, question number 7. Write the following interval in set builder form. Question number 1 here, first part of 7th question. -3, 3 in small brackets. We can write in the set builder form like this: x such that x belongs to R, x is greater than -3 and less than 0. Next question, question number 2. 6, 12 within the braces. Big brackets are there, so we can say it is closed interval both side. So x such that x belongs to R, x is greater than equal to 6 and less than equal to 12. 6 and 12 are also included in it. Question number 8. What universal set would you propose for each of the following? Here first part of the question number 8 is the set
What universal set would you propose for each of the following? 1. The set of right triangle. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं राइट ट्रायंगल्स का जो सेट है वो किस यूनिवर्सल सेट के अंदर आना चाहिए? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, या और भी बहुत सारे कुछ आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन, यहाँ पर इन्होंने हमें 3 सेट दिए हैं। 3 सेट हैं। फर्स्ट वन इज ए, सेट ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5, बी जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6, सेट सी जिसके एलिमेंट्स हैं 0 2 4 6 8। अब वो पूछता है, उसने 2-3 ऑप्शन दिए हैं, वो पूछ रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा दिया हुआ सेट यूनिवर्सल सेट हो सकता है इन तीनों सेट के लिए। तो नो डाउट एक सेट ऑफ रियल नंबर्स जो 0 से और 10 तक है जिसमें एलिमेंट्स, वो इनके लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है क्योंकि ये सारे सेट्स जो हैं उसके अंदर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।